चलो फिर शुरू करते हैं अपन। कोलॉइड्स पढ़ना था अपन को, ठीक है ना। तो अपन कोलॉइड्स में पढ़ेंगे, दैट इज कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनियस सॉल्यूशंस, ठीक है ना। कोलॉइड्स आर हेट्रोजेनियस सॉल्यूशंस, heterogeneous solutions. So there are different type of solutions. There are different type of solutions. So if we talk about the solutions, we can say that the solutions are like this. There can be a true solution. There can be a true solutions. There can be a colloidal solutions. And there can be a suspensions. Suspension are also the solutions. The suspensions. ठीक है ना? So the true solutions are those, ठीक है ना? The particle size of dispersed phase, मतलब solute phase, is less than 1 nanometers, then it is called the true solutions. Colloidal solutions of particle sizes between 1 to 1000 nanometers, that is the particle size. We know that 1 nanometers will be equal to 10 to the power minus 9 meters, the nanometers. 1 nanometer is equal to 10 to the power 9 meters. And in suspension, the particle sizes greater than 1000 nanometers. That is then the solution is called suspension. These are homogeneous solutions. These are heterogeneous solutions. That is also a heterogeneous solutions. The heterogeneous solutions. Homogeneous solutions, heterogeneous solutions, and that is also heterogeneous solutions. Example, the solution formed by inorganic salts in water are generally true solutions because their particle size is less than 1 nanometers. Example, जैसे NaCl, K2SO4, BaCl2. So all these solutions which are dissolved in water, they homogeneously mixed in water, they dissociate in water and forms the solutions. They are called homogeneous solution. The homogeneous solution, Na positive and Cl negative, is mixed homogeneously inside the water. Here we can write the example. Somewhat the viscosity of the solution is higher than that of dispersion medium. Like we can write that milk, blood, gel. We can write jams, fruit jam, smoke that has particles. These are the examples of colloidal solutions. And we can write that. For suspension, the particle size is much larger than this. Suspension example. If the particle size is
If the particle size is greater than 1000 nanometers, then there is sedimentation. Sedimentation मतलब वो डिपोजिशन है, प्रेसिपिटेशन जैसे होता है. Sedimentation of solute in the solution. जब पार्टिकल साइज बड़ा होता है ना, तो फिर सेडिमेंटेशन इजीली हो जाता है. अगर सेडिमेंटेशन हो जाए तो फिर उनको कहते हैं सस्पेंशन. राइट. इन सबको पहचानने का तरीका ऐसे भी होता है ना. इफ वी पास द लाइट फ्रॉम द सोल्यूशन, अगर जितना लाइट का इंटेंसिटी यहां पर है उतना ही ट्रांसमिटेंट लाइट के भी इंटेंसिटी है, मतलब दे आर ट्रू सॉल्यूशंस. लेकिन अगर लाइट ऑपिक्यू, जैसे ऑपिक्यू ऑब्जेक्ट से पास करते हैं ना, थोड़ा डिम होता है लाइट. जितना ब्राइटनेस लाइट में इधर था, अगर उतना ब्राइटनेस ट्रांसमिटेड लाइट में नहीं है, मतलब सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ. अगर लाइट स्कैटर्ड हो जाए तो फिर जो ट्रांसमिटेंस लाइट होता है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा. Then in that case we'll say that it is a colloidal solution. सस्पेंशन वो होंगे जिनसे अगर हम लाइट को पास करेंगे सॉल्यूशन से तो there is no transmittance of light from that solution. If there is no transmittance of light from the solution, then it is called a suspension. तब अपन उन्हें क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलेंगे. That is Tyndall effect. आपने पहले पढ़ा होगा Brownian movement and Tyndall effect. That is a property of colloidals. So we are going to study the colloidal solution in this part, and that depends on the particle size of the solute which is present in the solution. They are heterogeneous solutions, so we won't have to study the homogeneous solution. Now we know that what is solution. Solution means there will be a solute and a solvent. किसी भी solution में solute वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसका अमाउंट ज्यादा होता है. सोल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट, सोल्यूट वो होगा जिसका अमाउंट कम होगा, और सॉल्वेंट वो होगा जिसका अमाउंट ज्यादा होगा. Now what we can do for the preparation of colloids, हम classification of colloids करते हैं. Classification of colloids. Classification of colloids. For the classification of colloids, colloids can be classified as based on the physical state. Based on physical state of dispersed phase and dispersion medium Actually solution will be, solution जो होता है, we know that solution is composed of solute and solvent. उसमें solvent होता है और solute होता है. solute हम उसको कहते हैं जो small amount में होता है, और solvent हम उसको कहते हैं जो excess में होता है. इधर हम solvent को dispersion medium बोलेंगे. Dispersion medium. And the solute is called dispersed phase. The solute is called dispersed phase. जो solute होगा उसको अपन dispersed phase बोलेंगे. So we have written the dispersion medium. Now another type of classification we can say that the based on nature of dispersed phase. Based on the nature of dispersed phase. And the third classification will be on the basis of
The particle size of dispersed phase. Particle size of dispersed phase. Particle size of dispersed phase. These are the classifications, the three types of classification we will study. So we can write that these are of 8 types. These are of 8 types. Based on nature of dispersed phase is of 2 types, that is called lyophobic and lyophilic. That is the lyophobic and the lyophilic, the 2 types. And the particle sizes macromolecular colloids, multimolecular colloids, the multimolecular colloids, and the third one is called associated colloids. And the third one is called associated colloids. So we can say that in associated colloids, we will study the micelle formation. In the associated colloids, we'll study the micelle formation. Lyophobic means the phobia with the solvent. Lyo means water. So lyophobic means they will have the phobia with the solvent. If they have the phobia with the solvent, they are solvent repelling. Solvent repelling. If they are solvent repelling, it will be difficult to form them. If they are solvent repelling, it will be difficult to form them. These are solvent attracting, philic. Solvent attraction, so easy to form them. Easy to form. Lyophilic and lyophobic. Lyophilic and lyophobic. These are of 8 types. We have to just distinguish between the physical state. Lyophobic, we have to study that because it is difficult to prepare, so we require some more classification in this. That is, since it is difficult to prepare lyophobic, so we require some more classification in this. One method will be condensation. Other method will be dispersion. The method for the preparation of lyophobic, because it is difficult to prepare, it is easy to prepare by direct mixing of the dispersed phase and the dispersion medium. So here we can write the classification, condensation and dispersion. Condensation method will be of 2 types. One is called physical condensation and the other is called chemical condensation. The chemical condensation and the physical condensation. In chemical condensation, we require the chemical reactions, double decomposition, oxidation, reduction, hydrolysis. Reduction, hydrolysis. Physical condensation will write that excessive cooling. That will be excessive cooling
and the exchange of solvent. That will be the classification exchange of solvent. That is how we can write the exchange of solvent. We can say in dispersion method we can write mechanical dispersion, electrical dispersion, and the third one we can say that is peptidation. So these are the dispersion method: mechanical dispersion, electrical dispersion. In electrical dispersion, we'll study the Bragg arc method. Bragg's arc method. In electrical dispersion and peptidation, all these what we have done as classification is for the preparation of colloids. अब इसको पढ़ेंगे तो preparation of colloids complete हो जाएगा. That is the preparation of colloids. So let us check. So that is about the preparation of colloids, right? पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन एक बार बोल के बता सकते हैं कि प्लीज व्हाइट इससे थोड़ा ब्लर दिख रहा है. ब्लर दिख रहा है तो कोई बात नहीं. थोड़ा लैपटॉप पास कर लेंगे. ब्लर दिखेगा तो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा लैपटॉप पास कर लेंगे. राइट, तो अपन ऐसे कर सकते हैं. अभी ठीक है विजिबिलिटी? अच्छा उस तरफ ब्लर दिख रहा था. ठीक है मैक्रो. So it is macromolecular colloids. Particle size, no? Macromolecular, multimolecular colloids, and associated colloids. ठीक है, राइट. ओके तो अपन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन. तो ये प्रिपरेशन मेथड्स है, तो एक बार अपन प्रिपेयर करके देख लेते हैं भाई. चलो देखते हैं प्रिपरेशन मेथड्स. इसको पढ़ेंगे तो विल गेट दैट व्हाट इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ colloids. तो पहले अपन करते हैं बेस्ड ऑन द classification based on physical state. Based on physical state. Classification based on the physical state. Right? Classification based on physical state we can write. Physical state में will write टेबल के फॉर्म में से क्लासिफाई कर लेता है. डिस्पर्सन मीडियम जो होगा, डिस्पर्सन मीडियम. एक हम डिस्पर्स्ड फेज लिखेंगे, डिस्पर्स्ड फेज. फिर हम कोलॉइड लिख लेंगे, द टाइप ऑफ कोलॉइड्स, और फिर हम एग्जांपल लिख लेंगे. दैट इज हाउ वी कैन मेक अ टेबल. And we'll take the example.
So we'll write the dispersal medium is solid. And suppose in a solid, the dispersed phase is solid, liquid, and gas. Another is, let us write the liquid. Again, in liquid, we'll write the solid, the liquid, and the gas. Third, we can write that gas. So solid, liquid, and the gas. And the gas. Solid, liquid, and the gas we can write. इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन के आगे लिखा था ब्रेडिग्स आर्क मेथड, BREDIGS, पढ़ेंगे ना पहले? ब्रेडिग्स आर्क मेथड है ऐसे ना, ब्रेडिग्स आर्क मेथड लिखा था ऐसे, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इसमें देखते हैं। तो कोलाइड जो होगा ना, गैस में आप किसी को भी मिक्स करो, मतलब गैस डिस्पर्सन मीडियम वो होगा जो एक्सेस में होगा, और डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है। अभी गैस में आप सॉलिड ऐड करो, लिक्विड ऐड करो, या गैस ऐड करो, the type of colloids it is called as aerosol. They are called aerosol. The type of colloids they are called aerosol. लिक्विड में सॉलिड ऐड करोगे मतलब बहुत सारा सॉलिड, थोड़ा बहुत सारा लिक्विड, थोड़ा सा सॉलिड। लिक्विड में लिक्विड ऐड करेंगे, तो लिक्विड में अगर बहुत सारा मतलब अपन थोड़ा सा सॉलिड ऐड करेंगे लिक्विड में, दे आर कॉल्ड सॉल। एज वी से सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉल। अगर लिक्विड में लिक्विड ऐड करोगे तो इट इज कॉल्ड इमल्शन, और अगर लिक्विड में गैस ऐड करोगे विल कॉल्ड इट एज अ फोम। सॉलिड में सॉलिड ऐड करोगे दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट। बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड ऐड करोगे विल कॉल्ड इट एज अ जेल। बहुत सारे सॉलिड में थोड़ा सा गैस ऐड करोगे विल कॉल्ड इट एज अ सॉलिड फोम। That is called solid foam. So these are the type of we'll say that the colloids which what we have to study. Mostly जो अपन का क्वेश्चन पूछता है ना, वो जेल मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिखेगा, जेल या फिर सॉल या फिर इमल्शन, फोम, एरोसॉल। गैस में कुछ भी ऐड करो एरोसॉल ही होता है। सॉलिड में सॉलिड ऐड करेंगे ना, वी कैन से दैट इज एलाइज। मतलब बहुत सारे पार्ट, मतलब बहुत सारा अमाउंट छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा दूसरा मेटल को क्रश करके दूसरे अदर मेटल में ऐड करेंगे। वो पार्टिकल साइज दैट रेंज, बट दे कैन आल्सो बी काउंटेड एज एलाय। बोलेंगे तो इनको एलाय बोलना तो उनको एलाय ही पड़ेगा अपन को। जेल, टूथपेस्ट, दे आर जेल। फ्रूट जैम, jellies, we can write like that. सॉलिड में अगर अपन गैस ऐड करेंगे ना, सॉलिड में गैस,
सॉलिड फॉर्म बोलते हैं अपन उसे। तो सॉलिड जो है, अगर उसमें गैस होगा तो सॉलिड का मास बहुत कम होगा, अगर उसमें गैस होगा तो इट फ्लोट्स ऑन वाटर, क्लीमाई स्टोन। that floats on water. Colored glasses, colored stone. वैसे कलर्ड स्टोन में ना गैसेस की वजह से भी होता है, बट कलर्ड स्टोन इसका भी एग्जांपल होगा। वो तुमने पढ़ा था ना, शेफायर ब्लू, एमेराल्ड ग्रीन, रूबी रेड, all are aluminum oxides. But depending on that कि अदर मेटल कौन सा प्रेजेंट है, we used to write the ruby red, क्रोमियम की वजह से आएगा। So it is because of the other metals. अगर सॉलिड को ऐड करेंगे लिक्विड में, अभी सॉलिड गैस को आप हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट भी लिख सकते हो। प्लैटिनम H2 सॉलिड पे गैस होता है, एडजॉर्ब होता है ना, एक्सेट्रा, वी कैन राइट लाइक दिस। अभी बहुत सारा लिक्विड है, थोड़ा सॉलिड है, मडी वाटर, जो गंदा पानी होता है जिसका विस्कोसिटी पानी से काफी ज्यादा होता है। ब्लड, they are heterogeneous solutions. Liquid, that is emulsions. So emulsions are milk, because liquid fat is dissolved in water is a milk. Milk is a heterogeneous solution. Milk is a heterogeneous solution. उसमें लिक्विड फैट को डिसॉल्व करेंगे अपन वाटर में। पेंट, वॉल पेंटिंग जो होता है ना, पेंट्स, दे आर इमल्शंस। वैसे इमल्शन पेंट तो ऐड में भी आते हैं, पेंट विद इमल्शंस। लिक्विड एंड गैस, तो अपन बोल सकते हैं लिक्विड एंड गैस, दैट इज परफ्यूम एंड डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स कैन बी गैस और लिक्विड, वो क्योंकि लिक्विड उसमें बहुत कम होता है, गैस ज्यादा होता है, तो डिओड्रेंट्स कैन बी बेटर एग्जांपल ऑफ दिस। इसमें अपन कुछ एरिएटेड ड्रिंक्स बोल सकते हैं विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन, ड्रिंक्स विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन, पार्टिकल साइज शुड बी लाइक दैट, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो एरिएटेड ड्रिंक्स लिख सकते हैं अपन। सॉलिड एंड दैट इज गैस, बहुत सारा गैस है, थोड़ा सा सॉलिड है, तो स्मोक, smoke will be the example of that. और डस्ट इन एयर, अगर एयर में डस्ट है तो भी अपन उसका एग्जांपल बता सकते हैं, डस्ट इन एयर। गैस एंड लिक्विड्स, क्लाउड्स, मतलब ऐसे लिक्विड थोड़ा सा पार्टिकल होता है क्लाउड्स में, दे विल बी द एरोसॉल। फॉग, mist, they all can be the example of this. Gas and gas, we can write the mixture of gases, na? Air, that is a mixture of N2 plus O2. N2 plus O2, that is a mixture, any mixture of gases, we can say that. So mixture of gases, we can say, any mixture of gases. Mixture of gases will be the example of, that is gas and gas. Abhi we have written that. Mostly क्वेश्चन जो अपन से आते हैं वो जेल, सॉल, इमल्शन, फोम, एरोसॉल से आते हैं। We have written that one solid, liquid and gas, or for all three solid, liquid and gas, so these are of 9 times, nine types.
बट हमने तो लिखा था वो सिर्फ 8 टाइप्स के होते हैं, बिकॉज गैस इन गैस इज अ होमोजीनियस सोल्यूशन। और कोलोइड्स क्या होता है? दे ऑल आर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। सो अपन इसको नहीं लिखेंगे बिकॉज गैस इन गैस is a homogeneous solution. Gas in gas is a homogeneous solution. एक मिनट है, मुझे एक फोन लगाना है, 1 मिनट रुकना है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना था। चलो शुरू कर लेते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू दैट बिल्कुल क्रीम आएगा ना सॉल्व में, क्रीम विल कम अंडर द सॉल्व, है ना? तो क्रीम मीन्स विच टाइप ऑफ क्रीम यू आर टॉकिंग अबाउट? मार्कर कहाँ रखा है? क्रीम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बहुत सारा सॉलिड होता है और थोड़ा सा लिक्विड होता है उसमें। तो बहुत सारा सॉलिड होगा, थोड़ा सा लिक्विड होगा, जेल होगा, वो क्रीम आ जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? तो बाद में वो अपन से यही पूछेंगे, इसलिए मैंने जैसे पूछेंगे भाई बताओ क्लाउड किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अपन को ऐसे नहीं पूछेंगे, शायद ही अपन से कोई पूछेगा एरोसोल क्या होता है, लाइक दैट। हम तो ऐसे पूछेंगे, चलो तुम्हारे पास स्मोक है, बताओ स्मोक किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल, जेल, फोम, लाइक दैट दे विल डू, है ना? उस टाइप से वो मतलब बताते हैं अपन को, कोई बात नहीं है ना? सो वी कैन राइट लाइक दैट। अभी we got that what is the 8 types of solve, और अपन से क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेंगे कि भाई मडी वाटर है बताओ। अभी इन पे चार्जेस भी पूछेंगे, वो कोलॉइड्स आर चार्ज पार्टिकल और ऑल कोलॉइड्स, अपन शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे शुरू करेंगे अपन। सो वी गॉट इट कि भाई कौन सा मतलब 8 टाइप्स क्यों, जबकि कॉम्बिनेशन तो नहीं बना सकते अपन। तो गैस एंड गैस इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, और हमने यहाँ पर सारे के सारे जो भी सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं दे ऑल आर द हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन,
right? So this is the classification. Now we can write that अगर हम लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल्ट की बात करते हैं, so we can write that अगर मान लो हमारे पास गिवन है लायोफिलिक, so they are water attracting, or we can write that solvent attracting. Solvent attracting होता है, so can be easily prepared by direct mixing of solute particle, that is dispersed phase, or अब word भी use करो dispersed phase, of dispersed phase in dispersion medium, phase in dispersion medium, we can say that, right? Dispersion medium. Example we can write starch, gum, enzyme, rubber. They are dissolved in a suitable solvent. उनको हम एक suitable solvent में dissolve करेंगे. Then lyophobic, that is solvent repelling. अगर solvent repelling होगा तो mix कैसे करेंगे solute और solvent को? फिर तो mix करना मुश्किल होगा हमारे लिए. Solute और solvent को mix करना मुश्किल होगा, है ना? फिर तो mix होना करना मुश्किल होगा हमारे लिए. Lyophobic. ठीक है? So we'll write that it requires special method for preparation. Special method for preparation. ठीक है? Required special method for preparation. Because they are solvent repelling ना. So इसके लिए हमने काफी सारा क्लासिफिकेशन भी आके लिखा. Example, metal salts, या precipitation and reaction. Precipitation and reaction. In reactions. उस टाइप के एग्जाम्पल होंगे इसमें. We'll write like that. हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इनकी प्रॉपर्टीज के साथ इनको डिफरेंशिएट करके लिख लेते हैं, टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो उसमें क्या होगा, जैसे हमको अगर कोई एक ही एक्सप्लेन करना है तो जो भी आप प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करोगे लायोफिलिक का, वो सारा एक साथ सेंटेंस बना के वहां लिख दूंगा मैं. जो भी इसमें पूछोगे, अगर इसके बारे में पूछेंगे तो भी बता दूंगा, दोनों में डिफरेंस पूछेंगे तब भी बता देंगे. राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. See, if water is used as a solvent, if water is used as solvent, then they are called, in colloidal salt are called hydrosol. क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रासॉल. हाइड्रा मतलब वाटर. इफ बेंजीन तो बेंजोसॉल्स. इफ अल्कोहल्स then alcohol salts. So if water is used as a solvent, we'll call it as a hydrophilic, and this will be hydrophobic. Hydro मतलब water. So hydrophilic and hydrophobic बोलेंगे फिर.
अगर सॉल्वेंट वाटर यूज करेंगे तो, अगर सॉल्वेंट वाटर यूज करेंगे तो विल राइट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वी गॉट दैट। व्हाट यू मीन बाय हाइड्रो, हाइड्रोसॉल्स मतलब वाटर यूज करेंगे। तो when water is used as a solvent, तो अगर वाटर यूज किया तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक वर्ड यूज कर लेंगे। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग, हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया, मतलब किसी चीज से हमें फोबिया हो जाए ना, सॉल्वेंट फोबिया, सॉल्वेंट को लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड फोबिया। सो जैसे अपन को डार्कनेस से फोबिया हो जाए, तो डार्कनेस फोबिया का मतलब हमें डार्कनेस में जाने में डर लगेगा, हम नहीं जाएंगे उसमें, सो फोबिया हो जाए। तो ठीक है, विल राइट द डिफरेंस, विल राइट द प्रॉपर्टीज। We'll write for the properties for hydrophilic. We'll write lyophilic. Why? To make a solvent fixed. Lyophilic और दूसरा लिख सकते पर लायोफोबिक। सो दोनों में डिफरेंस लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं डिफरेंस। तो अपन एक एक प्रॉपर्टी करके डिस्कस करते हैं इनका, और फिर अपन डिस्कशन लिखेंगे। मतलब इसको और इसको ऐसे डिफरेंस लिखेंगे। विल राइट ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो अगर हम ईज ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इट कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, राइट ना, इजीली प्रिपेयर्ड by direct mixing of dispersed phase in dispersion medium, phase in dispersion medium, वो अपन को पहले से पता है, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था। जिसका सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको डायरेक्टली मिक्स कर लेंगे मीडियम में। अगर वाटर मीडियम है तो हाइड्रोसॉल्स बना लेंगे, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। रिक्वायर स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन, रिक्वायर स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन। दैट्स व्हाई इसका क्लासिफिकेशन लिखा था अपन ने, इसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया था। नेचर ऑफ कंपाउंड ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, है ना, नेचर ऑफ कंपाउंड। एक तरीके से मैं एग्जांपल लिख रहा हूं डिस्पर्स्ड फेज, कि भाई कौन से एग्जांपल में ये बना लूंगा मैं इसलिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक स्टार्च, गम, एंजाइम, प्रोटीन्स, वैसे एंजाइम प्रोटीन एंजाइम ही होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, द स्टार्चेस कार्बोहाइड्रेट्स। वी कैन इवन राइट रबर इन, बिकॉज रबर तो वाटर में नहीं डिजोल्व होने वाला ना, तो हम सॉल्वेंट इसको लेंगे, रबर इन ईथर, बिकॉज दिस इज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लेंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने कोई फिक्स थोड़ी किया कि वाटर में डिजोल्व करना है। यू कैन टेक बेंजीन, इन बेंजीन plastic will dissolve in benzene, we can write etc. इसमें अगर मैं लिखूंगा ना एग्जांपल, तो विल राइट दैट मेटल सॉल्यूशंस, metal sulfides, hydroxides, etc. we can write. अभी मेटल कोई वाटर में डिजोल्व थोड़ी हो जाता है इजीली, उसके लिए तो स्पेशल मेथड चाहिए अगर हमको डिजोल्व करना है उसको वाटर में। तो that's why we have written that we require a special method for the preparation. Metal hydroxide require special method for the preparation. क्लासिफिकेशन में लिखा ना अपने ब्रेडिग्स आर्क मेथड,
पेप्टाइजेशन, ये नया नया वर्ड यूज किया ना। लायोफिलिक में तो कुछ भी नहीं लिखा आपने, क्यों? क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व करेंगे, बन जाएगा। स्टेबिलिटी, highly stable, can be precipitated by adding suitable electrolyte, less stable. So can be precipitated by adding suitable electrolyte, can be precipitated by electrolyte, electrolyte। और एक बार पीपीटी हो गया तो रिवर्सिबल ही नहीं होता, ये तो रिवर्सिबल भी हो जाएंगे। हाइड्रेशन, भाई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इसलिए तो है क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, हाईली हाइड्रेटेड, हाईली हाइड्रेटेड, ये भी लेस हाइड्रेटेड और नेग्लिजिबल, हाइड्रेटेड। अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हमें पता कैसे चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिजियोअब्जॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, उसमें हमने एक एग्जांपल लिखा था। फिजियोअब्जॉर्प्शन मतलब डस्टिंग विद द क्लोथ, उससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। एनर्जी से रिलेटेड, रिवर्सिबिलिटी, प्रेशर इफेक्ट, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ऐसे कुछ इसमें भी कर लेते हैं, है ना। तो अगर इसमें अपन करेंगे तो देखो भाई, मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ स्टार्च, है ना। तो मैं इसको ना कोई ऐसा एग्जांपल लिख लेते हैं स्टार्च का। स्टार्च मतलब व्हीट इज द स्टार्च, है ना। तो जो व्हीट से हम क्रश करके फ्लोर बनाते हैं, आटा जो बनता है ना, भाई मुझे एग्जांपल चाहिए जिससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपको जो मर्जी चाहे बोलो, है ना। तो घर में अपन को पता है जो आटा होता है जिससे चपाती बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। जब अपन उसमें पानी डालते हैं तो सारा पानी एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है। पता क्यों? बिकॉज आटा जो स्टार्च है ना, दैट इज लायोफिलिक, सॉल्वेंट अट्रैक्टिव। वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? हाईली हाइड्रेटेड। हाईली हाइड्रेटेड होता है इसलिए तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन मतलब एक्सोथर्मिक फिनोमेना। इजिली प्रिपेयर मतलब मैंने वाटर में आटा डाला, बन गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे अपन, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, सारे के सारे बड़े मॉलिक्यूल। फ्लोर इन वाटर, फ्लोर मतलब आटा, तो उसको पानी में डाल देते हैं, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली मिक्स होते हैं, हाईली हाइड्रेटेड होता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अभी मेटल को पानी में डालोगे, पहले तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए स्पेशल मेथड चाहिए उसको बनाने के लिए सोल्यूशन। हाइड्रेशन होगा नहीं, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होगी। और बन भी जाएगा तो कोई अपोजिट चार्ज आयन डाल दो, फट से प्रेसिपिटेट हो जाएगा मेटल, अगर प्रेसिपिटेट बनाता है तो, है ना। तो रिवर्सिबिलिटी, अगर हम रिवर्सिबिलिटी लिखेंगे तो वी नो दैट अगर कभी कभी जैसे शाम को अपन को आटा बच गया, चपाती नहीं बनाना है, तो अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा करके फ्रिज में डाल देते हैं, वो फ्रिज में ड्राई अप हो जाता है। फिर क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा पानी डालते हैं, वापस उसे आटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्राई अप हुआ तो थोड़ा हाइड्रेशन कम हो गया, हाइड्रेशन कम हुआ, हमने वापस पानी डाल के उसको वापस बना लिया। ये कभी एग्जाम्पल ऐसे भी होता है। आपने लिखा ना गम, गम क्या है? फेविकॉल लिखा आपने, या स्टिक करने वाला जो कैमलिन वाला जो गम आता है उसकी बात कर रहा हूं। अगर कभी कभी आपने देखा होगा फेविकॉल ना, वो बॉटल में सूख गया, ओपन करके छोड़ दिया, सूख गया, वो ड्राई अप हो गया,
क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दो उसमें, या तो हॉट वाटर डाल दो, या उसको जो सूखा हुआ है, ड्राई अप है, उसको हॉट वाटर में डाल के थोड़ा रोटेट कर दो, स्टर कर दो, क्या बनेगा, वापस फेविकॉल बन गया। लेकिन ऐसे नहीं होता कि एक बार प्रेसिपिटेट बन गया चलो पानी डाल देते हैं वापस प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा ये ड्राई अप हो गया तो मैं वापस कन्वर्ट कर लूंगा पानी डाल के गर्म करके, ये नहीं कर पाऊंगा, मतलब दिस इज हाईली हाइड्रेटेड, दिस इज रिवर्सिबल, दिस इज नॉट रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल। ड्राई होगा तो थोड़ा सा हॉट वाटर में डाल के वापस अपन गर्म करेंगे तो वापस बन जाएगा रिवर्सिबल। ठीक है, तो अपन सब घर में देखते हैं पेरेंट्स को वो आटा बनाते हुए, मॉम को तो देखते ही हमेशा, वो आटा में पानी डालती है, फट से वो हाइड्रेटेड हो गया तो स्टेबलाइज हो गया, इसलिए फटाफट उसके चपाती बन जाते हैं, वो टूटते नहीं है चपाती, राइट। तो उससे अपन क्वेश्चन को जो भी उसमें होता होगा अपन उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और पहले तो अपन को पता है ना, पहले वो क्या करते थे ना, काफी सारा वाटर लेते थे, उसमें थोड़ा आटा डाल देते थे और उसको हीट करते थे, रहते थे, रोटेट करते, जब ये गम वगैरह नहीं होते थे ना, फेविकॉल वगैरह नहीं होते थे, अभी फेविकॉल वगैरह आए थोड़ा टाइम थोड़ी हुआ, हार्डली 20 ईयर्स हुआ, पहले था ही नहीं ना फेविकॉल होता क्या किसी को नहीं पता था। तो वो क्या करते थे, कैसे स्टिक करते थे पेपर्स को, कॉपीज को भी स्टिक करना है तो ऐसे ही करना पड़ता था, क्या करो, वाटर लो, उसमें आटा डालो, उसको स्टर करते रहो काफी देर तक, अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाएगा, जब वो अच्छे से हाइड्रेटेड हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा वो, तो थिक होने के बाद फिर अपन उसको निकाल के पेपर पे लगा के कॉपी को स्टिक कर लेते, क्योंकि दैट इज अ स्टार्च, उसमें काफी सारे OH बॉन्ड होते हैं, और कॉपी सेलुलोज उस पर भी काफी सारे OH बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टिक हो गए। तो दैट इज द एग्जांपल, दैट इज कोलॉइड्स। हमें कोलॉइड्स पता था इसलिए हम फेविकॉल बना पाए, अच्छे से पता था इसलिए हम फेविक्विक बना पाए। रिवर्सिबिलिटी। चलो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। विस्कोसिटी, अगर हम विस्कोसिटी की बात करेंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ द लिक्विड। अगर आप पानी में आटा डाल दोगे तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, लेकिन पानी में मेटल डालने से उसका थिकनेस नहीं बढ़ने वाला, मेटल तो वैसे रहेगा, डिसॉल्व होगा तो थिकनेस बढ़ेगा ना, हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मतलब पानी ने जो भी मीडियम में डिसॉल्व किया, दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मीडियम ये बढ़ जाएगा विस्कोसिटी, मतलब थिकनेस, विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ऑफ द लिक्विड होता है। जैसे ऑयल इज मोर विस्कस देन वाटर, ऑयल उतना स्पीड से फ्लो नहीं करता जितना स्पीड से वाटर फ्लो करता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑयल का विस्कोसिटी कम हो जाता है, फिर वो फ्लो कर सकता है, बॉइलिंग ऑयल तो फ्लो करेगा, उसका विस्कोसिटी, काफी सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो गए ना उसके, ऑयल मतलब हाइड्रोकार्बन्स, सेम एज, almost same as that of dispersion medium, almost same as that of dispersion medium, almost same as that of dispersion medium. Surface tension, surface tension, अगर हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो विल से दैट, ठीक है भाई, वी नो दैट अगर सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स, तो उनका जो लिक्विड सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ना पार्टिकल, उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ इफ वी ऐड सम सॉलिड मतलब डिस्पर्स्ड फेज इन दिस, तो इनका उसके साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो सरफेस पे जो इनका टेंशन था जो टेंशन था वो कम हो जाएगा, मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, सो डिक्रीजेस
और लेस देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम में क्या आता है, इज लेस देन द डिस्पर्सन मीडियम, है ना, डिस्पर्सन मीडियम, बिकॉज सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा ना, द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ, अपन को ये पता है लिक्विड पार्टिकल जो सरफेस पे होते हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता, क्योंकि वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते हैं। सो देयर एनर्जी इज हायर, सो दे अट्रैक्ट द अदर पार्टिकल ऑन देयर सरफेस टू गेट स्टिक विद देम। लेकिन अगर इसका मैं इसको कोलाइडल सॉल्व में कन्वर्ट कर लूंगा तो जो पार्टिकल होंगे ना सॉल्व के, वो इसको अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी एनर्जी कम कर देंगे, इसकी एनर्जी कम होगी तो सरफेस, इसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस पे जो प्रेशर होगा ना दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का, वो कम हो जाएगा, नियरली ऑलमोस्ट सेम। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, डिसॉल्व होगा तो फर्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ dispersion medium. Now we can write about electrical conductivity. Electrical conductivity. Conductivity. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे ना अपन, तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, डू नॉट माइग्रेट। जब अपन इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना to any of the electrode, any electrode on electrolysis, भाई कैथोड और एनोड लगाएंगे अपन, तो जब पार्टिकल में चार्ज ही नहीं है तो माइग्रेट कैसे करेगा किसी इलेक्ट्रोड की तरफ। सो डू नॉट माइग्रेट टू एनी इलेक्ट्रोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस से इनका माइग्रेशन नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ, देयर इज नो माइग्रेशन। लेकिन इसमें अगर आपने मेटल आयन स्पेशल मेथड से बना लिया तो मेटल आयन होंगे, जैसे सिल्वर आयन है या गोल्ड आयन है या प्लेटिनम आयन है या एल्यूमिनियम आयन है, दे विल हैव चार्ज, सो दे विल माइग्रेट। So on electrolysis, they will migrate to the respective electrode. On electrolysis, they will migrate to the respective electrode. Respective electrode. They will migrate to the respective electrode. ठीक है ना? So these are few properties we have written for the colloidal particles, जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि what अगर हमारे पास आता है कि भाई आप लायोफिलिक को एक्सप्लेन करो, सारा बता दो ये 8 पॉइंट। अगर लायोफोबिक को एक्सप्लेन करना है तो भी आप सारा डिस्कस कर सकते हो उसमें। तो व्हाटएवर हमसे पूछेंगे, कोई भी हमसे पूछा, डिफरेंस पूछा, विल राइट लाइक दिस। अगर किसी एक को एक्सप्लेन करना है तो यही पॉइंट्स डिस्कस कर देंगे, दैट इज लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। और इसमें अगर अपन ये याद रखते हैं कि लायोफिलिक मतलब घर में जैसे अपन आटे के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसमें सब कुछ होगा, पानी में आटा डाल दो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, स्टिकनेस बढ़ जाएगा, उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्यों कम हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स जो सरफेस पे थे ना, वाटर पार्टिकल, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया उसने, सरफेस टेंशन कम हो गया। उनमें कोई चार्ज तो होता नहीं है, देयर विल बी नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिवर्सिबिलिटी, हाईली हाइड्रेटेड, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज नोन टू यू व्हाई इट हैपेंस। उसके हिसाब से अपन इसको भी डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट द लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, राइट ना? So that is the difference between the lyophilic and lyophobic colloids. Now we can discuss in that classification ना, उस चार्ट में अगर हम चेक करेंगे क्लासिफिकेशन वाले चार्ट में, तो अभी हम लायोफोबिक के बारे में देखते हैं कि लायोफोबिक, क्योंकि उनके लिए हमको स्पेशल मेथड चाहिए ना, तो पहले अपन लायोफोबिक डिस्कस करते हैं, बाद में फिर अपन पार्टिकल साइज को डिस्कस कर लेंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक, बिकॉज उसमें स्पेशल मेथड था ना, तो अपन उसमें बता देते हैं भाई क्या होगा लायोफोबिक सॉल्व्स। तो अपन प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। लायोफोबिक को अपन ने क्लासिफाई किया था कंडेंसेशन मेथड एंड डिस्पर्शन मेथड में, तो पहले कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं। सो कंडेंसेशन मेथड की बात करते हैं। कंडेंसेशन मेथड्स, कंडेंसेशन मेथड्स में पहले अपन ने लिखा था केमिकल कंडेंसेशन मेथड, सो विल राइट दैट कंडेंसेशन मेथड्स में
केमिकल कंडेंसेशन मेथड। सो अगर हम केमिकल, सो इन दिस व्हाट विल हैपन ना, आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया फ्लोर वगैरह का, मतलब एक एग्जांपल लिया, एटे का एग्जांपल लिया अपन ने, ये सारा पर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोलाइडल पार्टिकल जैसे अपन देखेंगे कि भाई कोलाइडल पार्टिकल, अगर हम पानी में एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें नमक डालते हैं और उसको डिसॉल्व कर देते हैं, हमको कैसे दिखेगा सोल्यूशन? ट्रांसपेरेंट, अपन को थिकनेस में दिखेगा। देन दैट इज व्हाट ट्रू सोल्यूशन। लेकिन अगर हम सपोज करते हैं कि जैसे लिस्ट्रीन होता है, माउथ वॉश वगैरह आते हैं, आपको पता होगा, कलर्ड सोल्यूशन जिसमें कलर आ रहा है सोल्यूशन में, तो उसमें कुछ पार्टिकल ऐड करके वो स्कैटरिंग की वजह से अपन ने कलर लेके आए, ये अपन डायरेक्टली बता देते हैं। पे कैसे अपन बता देंगे, तो विल से दैट कि मान लेते हैं जैसे अपन जो छोटा कफ सिरप आता है, कफ सिरप इज व्हाट, दैट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन। कफ सिरप इज ऑल कफ सिरप आर जनरली द कोलाइडल सॉल्यूशंस, राइट ना? वो एंटासिड वगैरह आते हैं, जेलोसिल वगैरह, दे ऑल आर, डाइजीन वगैरह, वो सब लिक्विड डाइजीन, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट? अभी ठीक है, वी गॉट एन आइडिया। सस्पेंशन कौन से, तो जिन सोल्यूशन को हम रखेंगे और उसमें सेडिमेंटेशन हो जाएगा, देन दे आर कॉल्ड सस्पेंशंस। जनरली अपन क्या बोलते हैं, जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो सस्पेंशन जैसे होता है। वो क्यों? क्योंकि फ्रूट जूस में आपने देखा होगा कि वहां धीरे 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 अगर लॉन्ग टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए अपन रख देते हैं जूस को, तो उसमें नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। तभी अपन पहले उसको शेक करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं। तो केमिकल कंडेंसेशन में केमिकल मेथड्स देखने अपन को, जो स्कूल में अपन कर सकते हैं कोलाइड्स प्रिपरेशन के लिए, वो केमिकल मेथड में अपन को इंपॉर्टेंट होंगे। स्कूल वाले मेथड में आई राइट दैट डबल डिकम्पोजिशन, ये स्कूल में अपन को पूछेंगे। वो डबल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास गिवन है आर्सेनिक ऑक्साइड, इसमें हमने H2S गैस पास किया। स्कूल में हम केटाइंस और एनाइंस का प्रैक्टिकल करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जब हम इसमें सॉलिड में इसको पास करेंगे, इन दिस एक्वस ये पास करेंगे, तो विल गेट दैट, ये भी अपन को एक्वस सॉल्यूशन गिवन होगा, तो विल गेट दैट आर्सेनिक सल्फाइड प्लस विल गेट दैट H2O. This arsenic sulfide is yellow color colloid. The yellow colloid is formed, the arsenic sulfide. अब जैसे अगर मैं कहता आपसे कि व्हाइट कोलाइडल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, तो जैसे कर्ड मिल्क होता है ना, लस्सी होता है, जैसे वी नो दैट लस्सी से ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा अपन को, अगर उसको ग्लास में रखेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ देख नहीं सकते हम, दैट इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही इसमें ना येलो कलर कोलाइड बनेगा, दैट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। बस लस्सी की व्हाइट होता है, ये येलो होगा, दैट इज, ये अपन ऐसे बोल सकते हैं। अपन को पता है ना फ्रूटी, बड़ा वाला बॉटल में होता है जो, उसमें अपन को दिखता है येलो कलर, दैट इज अ कोलाइड, दे आर कोलाइड्स, एंड दैट्स व्हाई वो प्रेसिपिटेट नहीं होते। भाई अगर उसमें फ्रूटी में अपन को कहते हैं भाई मैंगो है, तो मैंगो सेटल डाउन क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको कोलाइड्स बना रखा है, इट्स अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका कलर बिल्कुल फ्रूटी के जैसा होगा, वो प्रेसिपिटेट भी नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन भी नहीं। दूसरा भी हो सकता है Bi2O3,
That will be orange color solution. Bi2S3, orange colloids will get like this. Copper oxide है, इसको H2S से पास करते हैं, we'll get copper sulfide, the black colloids will read like this, the black colloids. Another method we can write as oxidation. Oxidation में what we'll write, हम H2S का oxidation करेंगे SO2 से, and it will get converted into sulfur. There is a sulfur colloids plus twice of H2O will be formed. There is a colloidal sulfur. It is इसका कलर बिल्कुल लस्सी के जैसा होता है, जैसे अपन बार बार लस्सी की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल लस्सी के जैसा होगा. White colloids. Colloidal sulfur is white. Colloidal solution. Reduction की बात कर सकते हैं अपन. आगे अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा भी आपको their colloids. So we can write that reduction में we can form a gold solution. AuCl3 को रिएक्ट करेंगे HCHO के साथ प्लस H2O के साथ. We'll get the metal salt plus formic acid plus HCl. This will be formed. We'll write like this. We'll write like this. That is how we will get the answer. The balance reaction. Balance किया मैंने बस. अपन क्या करेंगे? This is a metal salt. Gold दिखता येलो है. अगर उसका colloidal solution बनाएंगे तो it is red in color. It is a red color salt. मतलब gold का solution जो बनता है वो red color solution बनता है. And I will say that depending on the size of the metal particles, वो अलग अलग भी हो सकता है. Because light का scattering होगा तो हमें visible light दिखेगा ना. तो लाइट के वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा कि स्कैटरिंग कैसे हो रहा है, कलर भी चेंज हो सकता है. मैंने तो इसको लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर ऐसे होगा तो रेड कलर सोल्यूशन दिखेगा. हाइड्रोलिसिस भी लिखा हमने. इसको मैं सिल्वर क्लोराइड लेके भी ये रिएक्शन कर सकता हूं तो सिल्वर सॉल्ट बनेगा. हाइड्रोलाइसिस वी नो दैट रिएक्शन विद वाटर. FeCl3 को रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ. We'll get that FeOH whole thrice plus thrice of HCl. This is a brown colloidal salt because we all know that FeOH whole thrice is a brown PPT, ferric hydroxide. Ferric hydroxide is a brown PPT. अगर इसकी जगह मेरे पास AlCl3 होता ना और इसमें एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करता, gelatinous white PPT of aluminum hydroxide, AlOH whole thrice. That is a gelatinous white PPT. Gelatinous white. It will be like this. और इसमें क्रोमियम भी हो सकता है. अगर हम क्रोमियम लिखेंगे तो it will be a green PPT then. अगर हम इसको CrCl3 से रिएक्ट करेंगे then it will be a green color colloidal solution. CrOH, chromium hydroxide is in green color. So that will be a green color solution. The green color colloidal solution will be formed. This is green in color. The green color colloidal solution will be formed. That is how we get the different colloids by chemical methods. मोस्टली केमिकल मेथड्स में ये पूछेंगे अपन से, और ये मैंने इसलिए रिएक्शंस को कम ही लिखा हुआ है बिकॉज ये और ये यही पूछते हैं अपन से, इसलिए मैंने भी उतना ही लिखा हुआ है. ग्रीन सॉल्यूशंस.
So chemical condensation के बाद we can write that another method is physical condensation. Physical condensation से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, वैसे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है तुमको, लेकिन फिर भी देखेंगे, अपन ने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन में तो विल राइट दैट. एक तो लिखा है अपन ने दैट इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, एक तो लिखा हुआ है हमने एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. Right? So we'll write the exchange of solvent, और exchange of solvent में we can say that हम पहले क्या करेंगे, जैसे सल्फर dissolved in alcohol. सल्फर is a non-polar compound, और अगर मैं उसे अल्कोहल में डिसॉल्व करूंगा तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉन पोलर, दिस इज भी नॉन पोलर. इसमें पोलैरिटी बहुत कम है अल्कोहल में, फॉर्मिंग ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है भाई. सल्फर अल्कोहल में डिसॉल्व होता है तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया, अगर डिसॉल्व होता है तो. देन this solution is dissolved in, is added in water, excess of water, excess of water. जब आप इसको excess of water में ऐड करोगे ना, तो ये अल्कोहल, सल्फर इन अल्कोहल क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर में, और फिर वो छोटे छोटे पार्ट धीरे धीरे स्टिक होंगे एक दूसरे से, और वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना लेंगे. Then sulfur in alcohol will start aggregating, will aggregate and convert into colloidal size. Colloidal size, इस साइज में वो कन्वर्ट हो जाएंगे. That is how we write the exchange of solvent. आप प्लास्टिक को डिसॉल्व कर लो ईथर में या बेंजीन में, फिर उसको एक्सेस ऑफ वाटर में डाल देना, तो छोटे छोटे पार्टिकल में वो कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाता है. इवन वी कैन राइट लाइक दिस, एक्सेस ऑफ कूलिंग. कूलिंग अपन क्या करेंगे, वाटर को ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म में. वाटर एडेड इन एक्सेस ऑफ क्लोरोफॉर्म. अब जो एक्सेस में इसलिए लिख देता हूं कि भाई आपको क्लियर रहे कि वो डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है और डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है. ईथर और क्लोरोफॉर्म. देन ऑन कूलिंग अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे. तो वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग. The water start freezing and convert to the particle size of, freezing and convert into ice, and convert to ice in particle size of, 10 to the power of, that is we can write that nanometers, colloidal range. ये colloidal range में convert होगा तो we'll get that how that excessive cooling will. हमने water ऐड किया ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म में, तो जब अपन वाटर को उसको कूल करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे,
एक पॉइंट आएगा जब वो कोलेटरल रेंज में, वो आइस के पार्टिकल कोलेटरल रेंज में आ जाएंगे, बस हम बता देंगे दैट इज द कोलेटरल सोल्यूशन ऑफ, राइट, दैट इज क्लोरोफॉर्म और ईथर with dispersed phase water in form of ice, that is condensation method. तो इससे ज्यादा जनरली अपन से कोई क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कुछ तो एग्जांपल लिख ही सकते हैं और बता सकते हैं व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड व्हाट इज एक्सेस ऑफ कूलिंग. Another method is that is chemical, that is physical method. Now we can write the dispersion method, है ना, preparation of colloids में. एक तो अपन ने ये लिखा, दूसरा अपन लिखते हैं dispersion method. डिस्पर्शन मेथड का मतलब हो गया, है ना, डिस्पर्सन मेथड की बात करते हैं, किसी को डिस्पर्स करना, फ्रैगमेंट करना, किसी को डिस्पर्स करना या फ्रैगमेंट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मेथड. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें एक तो आपने लिखा हुआ है मैकेनिकल डिस्पर्सन, मैकेनिकल डिस्पर्सन, राइट. तो एक मेथड अपन ने लिखा हुआ मैकेनिकल डिस्पर्सन. मैकेनिकल डिस्पर्सन का मतलब हो गया दैट इज द लार्ज साइज पार्टिकल, large size particles of dispersed phase is या तो आप क्रश कर लो और कन्वर्टेड into the particle size of colloidal range, size of colloidal range by मैकेनिकल मेथड. तो मैकेनिकल मेथड क्या होता है भाई ये? तो अपन कहेंगे देखो, अपन क्या करेंगे, जैसे दो सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं. द टू सर्कुलर डिस्क दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. एक सर्कुलर डिस्क हो गया और ये एक सर्कुलर डिस्क हो गया. द टू सर्कुलर डिस्क, इसका मूवमेंट ये होगा और इसका मूवमेंट अपन इस डायरेक्शन में बना देते हैं. दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. और इसमें अपन पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन एट हाई स्पीड, और इसमें अपन क्या करेंगे, उसको क्रश कर देते हैं. तो जो पार्टिकल्स होंगे उनको एक तरीके से ऐसे क्रश कर रहे हो आप. द टू सर्कुलर डिस्क आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, are moving at very high speed in opposite direction in opposite direction, so that the large size particle can be crushed between the disc. The large size particle is crushed into small particles between 1 to 1000 nanometers. ये है भाई. तो अपन कहते हैं इतना सारा, ये सर्कुलर डिस्क है, दिस इज द सर्कुलर डिस्क है ना, ये सर्कुलर डिस्क है अपने लिए, और ये पार्टिकल्स है. तो अपन कहते हैं भाई देखो, ये जो मैकेनिकल डिस्पर्शन आप बता रहे हो ना, ये मैं घर से वो जो वीट होता है ना, गेहूं बोलते हैं अपन उसे, वो वीट लेके गया था चक्की पे, फ्लोर मिल के पास. उसमें चक्की में डाला और उसने क्रश करके हमको आटा बना के दे दिया, और हमने आटे को पानी डाल के कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिया. हो गया मैकेनिकल डिस्पर्शन. आटा ही में तो कन्वर्ट करवा के आ गए अपन. वो क्या किया उसने, चक्की में होता क्या, वो सर्कुलर डिस्क होते हैं, वो हाई स्पीड पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. हम उसे कहते हैं कि भाई या तो थोड़ा सा उसको
वैसे कर दो, बड़ा पार्टिकल कर दो या छोटा पार्टिकल उसे करते हैं, तो वो इनको एडजस्ट कर देता है आगे आगे पीछे। दैट इज, वो यही काम करता है और हमारे पास आ जाता है, आटा बनवा लेते हैं उसे। फिर हम उस फ्लोर को वाटर में ऐड करके कोलेटल सोल्यूशन बना लेंगे, है ना। सो एग्जाम्पल, व्हीट converted to atana in a mill, फ्लोर मिल, है ना। फ्लोर मिल में अपन उसे कन्वर्ट करवा लेते हैं, वो एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिकल डिस्पर्शन तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया भाई क्या है। तो मैकेनिकल डिस्पर्शन से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला तुमसे, लिखने के लिए जरूर बोल सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन, या फिर पूछ लेंगे व्हिच इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफोबिक कोलाइड्स। दूसरा अपन ने लिखा था इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन में बाय इलेक्ट्रिकल प्रोसेस अपन को डिस्पर्शन मेथड करना है, और आपने लिखा भी तो ब्रेडिग्स आर्क मेथड, ब्रेडिग्स आर्क मेथड बताया था आपने। तो इसी मेथड से प्रिपेयर करके बना देते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मेटल सॉल्ट्स, राइट ना। इसको अपन मेटल सॉल्ट के प्रिपरेशन में यूज करेंगे, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर एक्सेट्रा, इस टाइप के अपन बनाने के लिए प्रिपेयर करेंगे। इवन लेड भी होता है, ठीक है ना। सो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ऐसे आप बता देना। अब ना मैकेनिकल डिस्पर्सन जैसे लिखा ना अपन ने, ऐसे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन देखते हैं वो क्या करेंगे। चलो अपन गोल्ड मतलब सॉल्व बनाते हैं, गोल्ड का सोल्यूशन बनाते हैं। क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे, एक्वा सोल्यूशन ही बना लेते हैं, और उसमें आर्क लगा देंगे अपन। पहले पानी से भर देते हैं उसको, ये वाटर है, ये इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब है ये पॉजिटिव पोल एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इसको बंद करते हैं और इससे बाहर अपन इसमें लगा देते हैं, ऐसे जरूरत पड़ेगा तो अपन ऐसे बंद कर देते हैं इसको। अब इसमें जो आर्क जनरेट होगा ना, एयर भी होगा इसमें, ऐसे ऑक्सीजन विल बी अराउंड एट मतलब 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 to मतलब 35 एटमॉस्फेयर तक ले सकते हैं अपन, 35 ATM, वो डिपेंड करेगा। मतलब अच्छा मेथड बनाना है तो अपन प्रेशर बढ़ा ही देते हैं फिर, ताकि एयर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पार इधर ना अपन सॉलिड इधर ले लेते हैं अपन, सॉलिड गोल्ड, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, गोल्ड पार्टिकल्स, इधर गोल्ड है, ये गोल्ड है। अब जैसे दो वायर होते हैं ना अपने पास, ऐसे अपन दो इलेक्ट्रिक वायर आते हैं अपने पास ऐसे, अगर अपन वायर को टच करेंगे तो स्पार्किंग होती है, करते हैं टच ऐसे तो स्पार्किंग होती है, उसी स्पार्किंग को बोलते हैं आर्क। और वहां बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है उसी पॉइंट पे बस। तो जब अपन इसका स्पार्किंग करेंगे ना तो उधर बहुत हाई टेम्परेचर होगा, तो अपन क्या करेंगे, या गोल्ड पीस पे ऐसे ऐसे करते रहेंगे अपन स्पार्किंग, वो मतलब मेथड है ऐसे। तो अपन क्या करेंगे, इधर ना आर्क जनरेट होगा सिर्फ इसी पॉइंट पे, और वाटर बहुत गर्म होगा इस पॉइंट पे, और अगर वहां गोल्ड है तो इतना ज्यादा गर्म होगा, मैंने आपको बताया वहां बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, कैन बी अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उससे भी ज्यादा हो सकता है इलेक्ट्रिक आर्क में। जब अपन आर्क जनरेट करेंगे ना तो दीज गोल्ड पार्टिकल जो है ना, ये गोल्ड जो होगा ना, सॉलिड गोल्ड, वो वेपराइज होगा, थोड़ा सा पानी होगा वेपर में और गोल्ड भी होगा वेपर्स में। ये जो गोल्ड होंगे ना, वो आर्क उतना हाई टेम्परेचर की वजह से वो वेपराइज होंगे, क्योंकि हम स्पार्किंग करते रहेंगे ना कंटिन्यूअसली।
पूरा पानी भी गर्म होगा बट थोड़ा ही गर्म होगा। सो अपन बता दो ना कि वहां वाटर वेपर्स भी आएंगे। अब हम कंटिन्यू स्पार्किंग करते रहे, गोल्ड वेपराइज होता रहा, वेपराइज होता रहा, और थोड़ा सा ताकि ये कंडक्टिविटी पानी की ज्यादा रहे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो हम इसमें थोड़ा सा KOH ऐड कर देते हैं। एडेड टू स्टेबलाइज सोल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, जब ये गोल्ड पार्टिकल्स वेपर्स के फॉर्म में जाएंगे ना, छोटे छोटे एक एक गोल्ड, बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर है, फिर हम क्या क्या करेंगे जब ये गोल्ड अच्छा खासा वेपराइज हो जाएगा ना, तो अपन इस कंटेनर को जल्दी से किस में प्लेस कर देंगे, आइस में प्लेस कर देंगे। आइस में प्लेस करेंगे तो जो ये पार्टिकल, अपन इसको यहां से हटाते हैं क्योंकि ये अपन को काफी कंफ्यूज करेगा, काफी सारा लिखा हुआ है ना। तो यहां पर अपन को क्या होगा, गोल्ड पार्टिकल, ये वेपर्स के फॉर्म में। जब अपन कूल करेंगे ना इसे, तो ये पार्टिकल एग्रीगेट होंगे, क्योंकि एक गोल्ड पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। तो जब कॉन्डेंस, क्योंकि हमने आइस में रखा, मतलब उसका कॉन्डेंसेशन भी फास्ट होगा। जब कॉन्डेंसेशन होगा तो कुछ गोल्ड पार्टिकल जो एग्रीगेट बन जाएंगे ना ऐसे, तो अपने कोलाइडल रेंज में अंदर आना शुरू हो जाएंगे, कोलाइडल रेंज में आना शुरू हो जाएंगे, एग्रीगेट होकर इधर कोलाइडल रेंज बनाना शुरू कर देंगे। इधर ये बड़े पीस थे, यहां बड़े पीस थे, तो वो कोलाइडल रेंज आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा सोल्यूशन बन गया? बनकर पता है ना, गोल्ड का सोल्यूशन रेड होता है, रेड सोल्यूशन इज फाउंड। हमें पता चल जाएगा ये कोलाइडल सोल्यूशन बन गया। हमने क्या किया, विल राइट दैट intense heat produced by the arc. So the intense heat produced by the arc will vaporize the gold metal, will vaporize the gold metal. When the particles of gold condense, when they condense, they aggregate and convert into the particle size of colloidal range. So they will convert into the particle size of colloidal range. They are colloid particles. So they will convert into the particle size of colloidal range, forming a red color solution. So forming the red color solution. KOH is added to increase the conductivity as well as. So we'll write that KOH is added to increase the conductivity, to stabilize the solution, and increase the conductivity of solution. इसलिए हम KOH को ऐड करते हैं, राइट? The O2 present in air will convert into, जो O2 होगा ना, that will convert into O, and this O will convert into O positive and electrons. So अपन इसमें N positive और N electron लिख लेते हैं. These electrons while condensation, जब condensation होता है ना, while condensation get stick on gold particles
generating the negative charge on the colloidal particle. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मेटल सॉल हैं उन मेटल सॉल पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन इधर था, O2 भी होता है और O2 प्लस N2 एयर होता है इसके अंदर, तो एयर होने की वजह से जो O2 प्रेजेंट है ना इसके अंदर, वो O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, O2 आयनाइज होता है, आयनाइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। जब ये कॉन्डेंस होते हैं तो इन पे इलेक्ट्रॉन स्टिक होता है, अगर इलेक्ट्रॉन स्टिक होगा तो क्या होगा, दे विल बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब है जो ये कोलाइडल सोल्यूशन है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपन को पता रहेगा जितने भी मेटल सॉल है ना सब पे नेगेटिव चार्ज आता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, स्पार्किंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन ऑफ मेटल वो उसके सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेगेटिवली चार्ज मेटल सॉल बनता है। सो ऑल मेटल सॉल्ट्स आर नेगेटिवली चार्ज। So therefore all metal salts are negatively charged. सारे के सारे मेटल सॉल होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। दिस इज ब्रेडिग्स-आर्क मेथड, ठीक है ना, दिस इज ब्रेडिग्स-आर्क मेथड। अब नेक्स्ट इज पेप्टाइजेशन। अपन पेप्टाइजेशन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे।